Hi Sahil, Hello, good afternoon. good afternoon. So Sahil, which planet are you going to? Mars. Nice. Yes, I'm in actually. Japan right now. Awesome. Alright, तो आज हम बात करने वाले हैं स्टेट हुक्स के बारे में रिएक्ट में। स्टेट हुक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड स्टेट हुक्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हुक्स पे मैं आना चाहूँगा। तो व्हाट आर हुक्स? एंड नॉर्मली क्लास जो होते हैं हमारे, एक क्लास डिफाइन होती है बिकॉज एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉलोज हुक्स कॉन्सेप्ट। तो क्लास डिफाइन होती है और क्लास के हमारे कंपोनेंट्स बनते हैं, राइट? जो हमारे लाइफ साइकिल के पार्ट होते हैं, कंपोनेंट लाइफ साइकिल भी बोलते हैं जिसको। एंड जब हम क्लास बनाते हैं तो क्लास हम क्या करते हैं, कंपोनेंट क्लास का इनहेरिट करके उसको बनाते हैं। बट जब हम हुक बनाते हैं तो हुक इज अ पार्ट ऑफ ए फंक्शन। एक फंक्शन हम बनाते हैं जो रिटर्न करता है कुछ, एंड हुक्स हम उसमें रखते हैं टू have some particular values. So this start from props earlier. Props are passed as parameter which we can use as initial state of some value. So coming to use state is used to change the state of a particular variable. Now that state can be any value, that can be a primitive value, all right. So in primitive value, it can be integer, it can be string, it can be a boolean value, it can be float value. And it is very important because many times after rendering of web page or during rendering of web page, we want to show that change. It can be a particular counter, it can be a timer where the value is continuously being changed, or it can be a event based thing when, like when we are clicking on a button, then the value is getting changed. Right, Sahid? Yeah, yes. So this is how it is. So let's start with the code so that you can understand it better. So first of all, we'll be importing use state from React. Okay, coming to the next, let's first jump into function, export default function. And this is the component. Although we are writing it function over here, but it is actually a React component. So here we will give the name in capital letters, state demo. All right. So here let's come over to this thing. I'm giving state demo to the name. Okay. So here see every function, it cannot be blank. It has to return something. Okay. Now coming to, let's say, initial variables, because there have to be some variables. So we are taking some variable, let थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसको लाल ले लेते हैं हम। तो और इसको हम सेट कर सकते हैं, सेट लाल। यूज स्टेट करेंगे। ओके, इसमें कलर पास कर देते हैं, रेड पास कर रहा हूँ इनिशियली।
So Sahil, see this one. Here I have taken one button. In button, on clicking on that button, the value should change. And same thing we can show over here in form of another div. And here I would like to tell something like how to show a style. And you have to give the value in this single quote. तो यहाँ पे हमने कोट्स यूज कर दी, जबकि कोट्स की जगह वो ब्रेसेस होनी चाहिए ना, ऐसे। ओके ओके। हम्म, कुछ एरर क्यों आ रही है? ओके। ओके। ओके साहिल, अब आउटपुट देख सकते हैं हम लोग। बिल्कुल। आउटपुट हम देख पा रहे हैं, रेड आ रही है। Okay, so the red is coming in red color. बिल्कुल। इनिशियली इसको ग्रीन करके रखते हैं so that हम डिफरेंस देख पाए। ठीक है, अभी ग्रीन लिखा रहा है बट उसका कलर रेड ही है, क्योंकि हमने वो स्टैटिक स्ट्रिंग पास किया हुआ है। हम यहाँ ठीक है, वो इसको स्टैटिक पास किया हुआ है बट वैल्यू जो है उसका चेंज हो जाता है फिर रेड में। हाँ हम यहाँ पे हाँ इसको आप डायरेक्ट लाल लिख सकते हैं हम इसको, तो जो कलर होगा पॉसिबली वही उसका कलर हो जाएगा। yes, so green will be green and red यस। will be in red. This can be used in the case of true and false where true appears green and false appears red. हाँ, उसके लिए हम कंडीशन लगा सकते हैं। तो एक्चुअली बटन टेक्स्ट हमने दिया नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे हमें चेंज रेड करना चाहिए हमें यहाँ पे। और ये तो हमें ऐसे ही चाहिए, मतलब यहाँ हमें कोर्स नहीं चाहिए। पॉसिबली अगर हम इसको रेड करेंगे तो वो सही से चेंज हो रहा है अभी एग्जैक्टली। ठीक है। नहीं, एक मिनट। बटन क्लिक करने से चेंज टू रेड से। हाँ हाँ, यस इट इज वर्किंग नाउ। ठीक है, ऑलराइट, इट इज डन नाउ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूज इफेक्ट। सो यूज इफेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूज इफेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट हुक है और यूज इफेक्ट में हम लोग क्या करते हैं
जैसे हमारा हर एक फंक्शन कुछ ना कुछ रेंडर करता है, बेसिकली वेब पेज रेंडर करवाते हैं हम। तो वेब पेज रेंडर होने के बाद हम क्या चाहते हैं कि ना पर्टिकुलर जो वैल्यूज हैं वो तो अपडेट हो ही हो, या फिर कोई फंक्शन रन होना है, या कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑपरेशंस रन हो रहे हैं, वो हम रन करें। तो कंपोनेंट लाइफ साइकिल में ये किस तरीके से आता है, क्लास कंपोनेंट्स की बात करें, जैसे कंपोनेंट डिड माउंट आता है, कंपोनेंट विल माउंट, और या कंपोनेंट अपडेटेड। तो ये क्या है, रेंडर होने के बाद ये यूज इफेक्ट चलेगा, एंड कंपोनेंट अपडेटेड एंड कंपोनेंट विल अपडेट, ये दोनों फंक्शन एक तरीके से माने जा सकते हैं जिसमें ये चीज चलेगी। कौन इसके पहले एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि है ना, अभी तो हमने बहुत ही पॉजिटिव कोडिंग करी है और इसमें एरर्स नहीं आए हमारे, बट अगर हम एरर लाना चाहें, और एक बहुत कॉमन एरर है वो कैसे आता है, वो तब आता है कि जैसे आप है ना कोई यूज स्टेट फंक्शन आप इससे रिटर्न वाले कोड में चला दो, ठीक है। जैसे अभी तो हमने अलग से रखा हुआ है, अगर मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन नहीं, मैं ना जावास्क्रिप्ट का कोड रन करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे सेट लाल करता हूँ, और यहाँ पे मैं रेड वैल्यू पास करने की कोशिश करता हूँ। देख पा रहे हो कोड में साहिल? हाँ एग्जैक्टली। तो ना यहाँ पे री रेंडर का प्रॉब्लम आने का चांस है। लेट्स सी। Too many re-renders React limits the number of हाँ, renders. तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि रिटर्न वाले कोड में आप इसको ना रन करें, सेट फंक्शन जो है इस तरीके से रन ना करें। और है ना, सेम प्रॉब्लम हमने फेस किया था जब हम सेट को बाहर रन कर रहे थे। जैसे कि अगर है ना मैं पहले ही इसको सेट को रन कर दूं, हालांकि है ना हम सेट बाद में ही रन करते हैं, बट अगर है ना हम इसको पहले ही कर दें, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे फिर से री रेंडरिंग का इशू आएगा। तो वहां पे आपको यूज इफेक्ट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यूज इफेक्ट क्या करता है, रेंडर करने के बाद इन चीजों को लागू करता है, तो हमारे को ये प्रॉब्लम नहीं आती है। अभी क्या होता है कि एक वो लूप में फंस जाता है जहाँ पे वो बार बार वैल्यू अपडेट करने की कोशिश कर रहा, मतलब रेडी कर रहा है पर वो बार बार कर रहा है। और इसके अलावा एक है ना स्ट्रिक्ट मोड की भी मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि अगर जैसे यहाँ पे कंसोल लोग हम करें, कंसोल लोग में अगर मैं पास करूं कि ना डेमो, और अगर हम देखते हैं यहाँ पे कंसोल पे जाके, तो आप देखिए कि है ना डेमो जो आ रहा है आपका, अभी एक बार आ रहा है, मैं इसको रन कर रहा हूँ, ठीक है, डेमो एक बार आ रहा है। ये इस वजह से हो पाया है क्योंकि हमने स्ट्रिक्ट मोड हटा रखा है अभी। पर अगर हम यहाँ पे अगर स्ट्रिक्ट मोड लगा देते हैं, आप देखते हैं ये किस तरीके से काम करता है। तो आप देख रहे हो जैसे 2 बार डेमो रन हुआ है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रिक्ट मोड अगर रहेगा तो 2 बार रेंडरिंग होगी। कई बार आप चाहते हो कि है ना जब आपका वेब पेज लोड हो तो एक पर्टिकुलर ऑपरेशन रन हो जहाँ यूज इफेक्ट काम करता है, पर अगर आपका स्ट्रिक्ट मोड एक्टिवेटेड है तो वो 2 बार रेंडर करेगा हर एक चीज को। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, और आपका बहुत टाइम बचा सकता है जो आप है ना ऐसे वेस्ट कर देते। तो आप हमें थैंक्स कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं हम यूज इफेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। यूज इफेक्ट के लिए एक न्यू फाइल मैं क्रिएट करता हूँ। क्लासिक। कौन सी फाइल में जा रहे हैं अब हम? पेड डेमो 2। मैं एक नई फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, साहिल, इफेक्ट डेमो 2। अच्छा। इसमें हम क्या करेंगे, यूज स्टेट के साथ यूज इफेक्ट भी हम इंपोर्ट करेंगे। ठीक है,
इंपोर्ट करने के बाद हम वैसे ही एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। मेरी साइड रिफ्लेक्ट हो रहे चेंजेस, ठीक है। ठीक है, अभी है ना यूज इफेक्ट में हम कैसे करेंगे, देखिए यूज इफेक्ट एक फंक्शन की तरह है। यूज इफेक्ट के अंदर दो पैरामीटर जाते हैं। पहला पैरामीटर तो हमारा सिंपल है, जिसमें हम कुछ भी दिखा सकते हैं। तो जैसे मैं दिखा रहा हूँ कि है ना यूज इफेक्ट हुआ है, दिस हैज बीन इफेक्टेड। ओके, और रिटर्न में खाली हम पास कर देते हैं, ब्लैंक रख के। तो लेट्स रन इट। रन करने से पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो हमने पहले इफेक्ट डेमो बनाया हुआ था, अभी हम इफेक्ट डेमो 2 बना लेते हैं। ठीक है, इफेक्ट डेमो 2 बनाने के बाद हम यहाँ पे इफेक्ट डेमो 2 ला सकते हैं। बेसिकली ये वहाँ पे यूज होता है, जैसे कि हमें पेज लोड करने पे कुछ बेसिक चीजें चाहिए, वहाँ पे इसकी जरूरत पड़ती है। कुछ एरर दिखा रहा है ये अभी। इफेक्ट की डेमो की स्पेलिंग यहाँ गलत हमने डाल दी, ठीक है। अभी भी कुछ एरर है, सेव नहीं किया है। फंक्शन की स्पेलिंग गलत लिख दी हमने, यहाँ पे FUN आना चाहिए यहाँ पे। ओके, हाँ एक टाइपो एरर, बेसिक टाइपो एरर। अब कंसोल में देखते हैं, यहाँ पे 2 बार दिस हैज बीन इफेक्टेड आना चाहिए। 2 बार एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि स्ट्रिक्ट मोड एक्टिवेट हो रखा है, राइट। तो कुछ एरर्स बताना चाहोगे साहिल, जो यूज इफेक्ट यूज करते वक्त तुम्हारे को कभी फेस हुए हो? अच्छा, रिस्पेक्ट अभी मतलब अगर हम यहाँ पे कुछ ऐसा हम बनाएंगे, कुछ हम डिव बना लें और हम उसमें अगर कुछ स्टेट सेट करने की कोशिश करें किसी बटन से, तो हमारा जो ये इफेक्ट है ये इनफाइनाइट रेंडर्स क्रिएट कर देगा ये, जो मतलब काफ़ी कॉमन इशू है। जैसे हम्म। कि कॉन्स्ट काउंट, जैसे इसको 0 ले लेते हैं और यहाँ पे ऐसे इंक्रीज अगर हम एक वो ले लें। आई गेस यही एक वो एक कॉमन इश्यू है, जब भी हम अगर ऐसे हम इसको इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे तो हमारा ये इफेक्ट रन होगा दोबारा, क्योंकि रेंडर फंक्शन जो ये पूरा रेंडर फंक्शन बनता है ये पूरा दोबारा से कॉल होगा। दोबारा से कॉल होगा तो फिर ओके। ये भी दोबारा से कॉल होगा इफ यूज इफेक्ट, वो फिर इनफाइनाइट रेंडर्स क्रिएट कर देगा। तो हम ओके। अब इंक्रीज करते हैं तो ओके, हम वो तब होगा जब हम इसके अंदर भी सेट काउंट कर देंगे जैसे।
कब होता है, तो ये एक सिंपल सिनेरियो हो गया उसका यूज इफेक्ट से काम करता है। हाँ हाँ, यू स्टेट का जो एरर है री रेंडरिंग वाला, वो यहाँ पे आ गया। अच्छा, एक चीज़ और है जो मैं कह रहा था कि मैं बाद में बताऊंगा, वो ये है कि अगर आप इफेक्ट डेमो 2 को देखेंगे तो इसमें पहला पैरामीटर तो आपका फंक्शन है, दूसरा आपका डिपेंडेंसी लिस्ट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इफेक्ट, जिसमें हमारा कॉल बैक है, और सेकंड क्या है हमारा रिएक्ट डिपेंडेंसी लिस्ट। ये ऑप्शनल है, बट हाँ, ये डिपेंडेंसी क्या है, ये डिपेंडेंट होगा किसी किसी और कंपोनेंट लाइफ साइकिल पे, आप इसे डिपेंडेंट कर सकते हैं। अगर आपका कोई डिपेंडेंसी नहीं है तो आप सिंपल इसको स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे करके छोड़ दीजिए, तो ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा हर किसी से, और सब कुछ रेंडर होने के बाद ही ये लॉन्च होगा। ओके। हाँ मतलब अभी ये पेज माउंट होने पे मतलब कंपोनेंट माउंट या पेज लोड बोल सकते हैं, तो उस पे ये जो इफेक्ट है ये तब रन होगा, सिर्फ एक बार रन होगा। हाँ मतलब अब हम जब हाँ ये इंक्रीज पे क्लिक करेंगे तो ये दोबारा कॉल नहीं होगा। हाँ, तो इसमें इस चीज़ एग्जैक्टली। का ध्यान रखना, कोई कंपोनेंट डिड माउंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, रेंडर हो जाएगा, उसके बाद ही एग्जीक्यूट होगा। हाँ अभी हमारा काउंट ठीक इंक्रीज है। हो रहा है लेकिन अफेक्ट एक ही बार ही रन हुआ है अब। हम्म। ठीक है। आई थिंक बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ है, एंड ये बहुत हाँ काम का रहेगा। अगर बिल्कुल। आप ना डीपली इस चीज़ को देखेंगे तो ऑलमोस्ट हमने सारे एरर्स भी कवर कर लिए, और एक बिल्कुल। अच्छा डेमो भी क्रिएट कर लिया। बिल्कुल। एंड नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉलेज विल सेव यू लॉट ऑफ टाइम, एंड जहाँ यस। टाइम की बात आती है वहाँ पे और कई सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। तो बिल्कुल। बी इट योर एनर्जी, बी इट योर मोटिवेशन, बी इट योर रिसोर्सेज, तो focus on knowledge, on getting the, but it will save you a lot. ठीक है, तो रैप अप करते हैं इसको भी। All right, Sahil, yeah, I think this is okay. या थैंक यू Yes, सो मच एलेक्स, लेट्स डू इट अगेन। thank you, Sahil. या बाय। Yeah, surely.